Good morning. Good morning. Good morning. It is so lovely to see all of you in the morning. So I am going to request all of you to switch on your video now. अब जैसे भी हो, don't worry about it. But I want to see all of you. And I would request now on, please keep your videos on because it gives me a lot of energy. जब मैं आप लोगों के चेहरे देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है. अदरवाइज तो मुझे लग रहा होता है एक ब्लैक स्क्रीन के सामने बैठ के बोल रही हूँ मैं. No, I So I think it's want to see your important actually to have videos on yeah. because Yeah, so I really want to see all of your beautiful faces, smiling and full of energy, full of full of excitement. So I would request everybody to please switch on their videos. Good morning, Ji. Good morning. Okay, so let everybody join in. Then I'm going to create a new game today for all of you. Great. So make it more exciting and interesting because going forward it is going to be a little, it'll need little more extra effort. Yeah. And दीपक आपके आसपास बहुत लोग नहा धो के निकल रहे हैं, जरा थोड़ा अपना एंगल चेंज कर लो. हमारा ये थोड़ा टेम्पल का है ना, तो फिर वो सारा हाँ, थोड़ा एंगल चेंज कर लो. Yeah. 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 Thanks. Okay. So I was just saying that today I'm going to create a game for all of you to make this more interesting and exciting. तो अभी सबको ज्वाइन इन कर लेने दीजिए, फिर मैं क्रिएट करती हूँ. तो अभी तक मुझे ये बताएं कि कल वाला सेशन में आपने थोड़ी सी मेहनत लगी होगी उसमें एंड बहुत लोगों को रेजिस्टेंस भी आया होगा. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द असाइनमेंट? You can unmute and speak. You can unmute or speak, or you can write yes in the chat box. so Yeah. Jagjit, sorry I was not well. So Yeah. I did not do the practices of the last 2 days. But today I'll watch both the videos and do them. So, Okay. And today's chapter is meant for you only because it's about health. yeah, that will be great. Yeah. So, I slipped and I fell. So that was just freak are you out. feeling okay now? Yeah, much better, much better. But वो थोड़ा उस समय बहुत जोर से लगा था. I just rested. Okay. So, wherever you hurt yourself, start paying gratitude for your body, rest of your body, and specifically, that part of your body. Oh yes, I just played the glad game. Okay. I literally played the glad game. So, Yeah. So the purpose is only to be in gratitude, whichever way it works for you. Yeah. So just fill your day with gratitude. That's all is needed. Yeah. Okay. So you can watch the videos today and do the practices. Because see, going forward, I would request all of you to be very, disciplined and committed. Because अभी जो सारे chapters है ना, वो हमारा future create कर रहे हैं. और अगर हमें अपने मन चाही जिंदगी चाहिए या हमारे ड्रीम्स हमको फुलफिल करने हैं, तो जितना हम कमिटेड होके और जितना एफर्ट डाल के इनको करेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड इसमें हम डालेंगे, उतना ही वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. yeah, I've had a history of a very bad injury and a very long rehab, physical rehab. And when I slipped and I fell, it impacted that very place. I mean, there were a lot of other things, but then that was one thing. And the nerve just flared up. So that although he gave me this medicine which was making me sleepy all day, or this book was by my side,
And the video you had sent, I would switch it on to listen to it, but I would doze off. So then after the first day, I said, okay, just let me give it up. But within a day, I was feeling so much better. I didn't take any painkillers yesterday. I didn't take painkillers at all. So I think that is a beautiful thing. And Yeah, thank you so much. you're welcome. The more you will pay gratitude for your body, na, the more it will start healing itself. Absolutely. Yeah. And even if you're taking any medications, so it will speed up the recovery. Hmm. When you fill it up with gratitude, along with the medication and whatever therapy or whatever doctor has advised, if you're doing that, it actually, speed up the recovery. Hmm. Yeah. So keep doing that. Yeah. Thank you so much for sharing. Yeah. Who else has done the assignment? I just want you to say yes and no. I don't want you to share kaun sa insaan tha, kya hua and all. I'm not asking. I'm not getting into any of these. I simply want you to write yes if you've done the assignment, or unmute and say yes. I've done Yes. it. Hello, ma'am. It's Meenu this side. I did my assignment. Okay, बहुत great. resistance आ रहा था. I want to share. Though Okay. I could not get the words to be grateful to the person I don't like. But Yeah. फिर भी I did it. And मुझे लगा कि काफी clear हो गया अंदर से. Just the writing effort. वो 10 sentences that came out very difficulty से आए. But Yeah. फिर भी there is some everything is not wiped out, but something is been wiped. या सो वही इस बुक ने बोला है कि जैसे होता है ना कि हमने बहुत सारा कुछ उनके अगेंस्ट अपने मन में भरा हुआ है, तो एक बार 10 ग्रेटिट्यूड लिखने से वो नहीं जाएगा. द ओनली थिंग इज यू विल फील स्लाइटली बेटर. या एंड इफ यू रियली वांट टू हील दैट रिलेशनशिप, बिकॉज वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपके लिए वो जलता हुआ कोयला है, आपके हाथ को जला रहा है, तो यू हैव टू डू कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड. तो आप चाहो, आप रोज ये प्रैक्टिस उनके लिए कर सकते हो, ताकि धीरे 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 वो सारा जो आपके मन में उनके लिए है फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स, वो सारी की सारी वाइप आउट हो जाए. Yeah. Exactly. So Yes. that is what the book is talking about. So if you felt slightly better, it will give you some encouragement. हाँ, ये कुछ हो सकता है यहाँ पे. हो सकता है. हाँ, उससे हुआ पहले है. लगता है कि it's a gone case, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता. Yeah. I just want But to share one more thing. yeah, That sure. the कुछ दिन पहले एक assignment था ना, the movement and situation जो आपको अच्छी नहीं लगती है, Yeah. उसको heal करने के लिए just pay gratitude to that thing. I did that, and that is not at all disturbing me now. Just Yeah. that 10 or 20 sentences of gratitude for that situation has changed so much in my life. I can't see that Yeah. situation is not bothering me at all. I'm free of that in Yeah. just that 10 sentences Yeah. of gratefulness. Thank you Great. so much. Thank you so much for sharing that. And I just want to add something to it. कि हम लोग ने जितनी भी जिस भी एरिया के जैसे चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मनी है, चाहे वो करियर है, तो हम जिस भी एरिया की चीजों को दिमाग में रखते हैं ना, that is occupying so much of our mind, and that is what gives us stress. That is give us heaviness. है ना, हमको वो सर भारी लगता है, या लगता है सर्वाइकल हो जाता है, या फ्रोजन शोल्डर हो जाता है. वो क्यों हो जाता है? बिकॉज वी फील दैट वी आर कैरिंग सो मच ऑफ बर्डन. Yes. वो बर्डन महसूस होता है, और ये बर्डन कुछ नहीं है, हमारे अपने थॉट्स हैं, एंड दैट इज नेगेटिव थॉट्स. तो ये नेगेटिव थॉट्स जो हमको बॉक डाउन कर देते हैं, है ना. जब आप खुश होते हो तो आप कितना हल्का महसूस करते हो ना. ऐसे लगता है कि वो एक गाना है ना, क्या अब तो चल पड़ी अपनी ही नाव है, ऐसे कुछ करके गाना है. बादल पे पाँव है. बादल पे पाँव है. या दैट्स राइट. So you actually feel you are, on the ninth cloud, और ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हो जब आप खुश होते हो. होता है कि नहीं होता? Say yes or no. Yes. या तो और जब आप बहुत उदास होते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया का सारा बोझ आप ही उठा के चल रहे हो. सो ऐसे ही जब हम एक एक चीज के ऊपर काम करते चले जाते हैं, तो हमें वो एक्सेस मिल जाता है, हमें वो एक तरीका मिल जाता है कि अगर जिंदगी में ऐसा फिर कभी कभी
होगा, बिकॉज जिंदगी में तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा. लाइफ इज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. सीधा सीधा तो चलता ही नहीं है ना. तो जब अप एंड डाउन आता है, जब डाउन जाएंगे तो हमें मालूम है कि हमने उसको अप कैसे लाना है. सो दिस प्रैक्टिस इज अबाउट दैट कि आप, जैसे वो कहते हैं ना, आप जिस भी सिचुएशन में हो आप स्थिर रहें. जितने भी ये स्पिरिचुअल पीपल होते हैं या बहुत ज्ञानी लोग होते हैं या बहुत इवॉल्व लोग होते हैं, उनको होता है ना, वो दुख सुख में एक जैसे रहते हैं. क्यों रहते हैं? बिकॉज दे हैव लर्न्ड दिस आर्ट. उनको दुख में भी वो ग्रेटिट्यूड दिख जाते हैं, जो हम अब ढूंढ रहे हैं ना, हर चीज में 10 चीजें. तो उनके साथ अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो वो उसमें भी शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि इसमें हमारे लिए कुछ लर्निंग है, इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा है जो हमें अभी नहीं दिखता है, जो हमने अब देखना शुरू किया है. राइट. सो धीरे धीरे जब हम ये सब सीख जाते हैं, तो हम, हो सकता है अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते जाएं, दिन हर महीने, साल के साल करते चले जाएं, तो कभी ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां हम भी ऐसे होंगे जहां हमें दुख सुख तक नहीं करेगा और हम स्थिर हो जाएंगे. तो अगर आप ऐसी जर्नी चाहते हो या ऐसी लाइफ चाहते हो, तो ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग इट. डोंट लीव दिस. इसको ना छोड़ना नहीं है, बस लगे रहना है. और उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर बना लो जो आपके लिए वर्क करता है. राइट. Yeah, so Ranji and Anjali and Piyush, so today I have requested everybody to be on video. I want everybody to be on video because I really want to see everybody. जैसे आज हमारे पूरन जी भी वीडियो पे हैं. Good morning Puran and welcome in the session. It's so lovely to see you. And we really miss you. Good morning Puran. Good morning everyone. Yeah. Good morning everyone. There is a small sharing, Jagji. Yeah. I've started feeling, when we pay this gratitude to anyone, or when we say thank you to anyone, we are completing a cycle and then we are out of that. Once we have said thank you, the kind of gratitude, and we are doing it with so much, it's so much a heartfelt gratitude, you really get that feel also. So you've taught that art there. So how to say thank you with heart. With putting all your feelings inside. Yeah. Like there's a small thing that happened in the morning today. It's a very, very, small incident. Yeah. I do pranayam, putting some music on this, which I opened from the Google Drive. Okay. And today morning when I was opening it, so it didn't open. The music was not, I could not hear the music. So I thought, why not pay gratitude to the Google Drive? So that I did, the music started playing. Then when I had put my microphones into it, then it was again not playing. So then I again paid gratitude to my microphones, and music started coming from there. It was so funny. The way things are happening. It's so magical, na? Yeah. And now we know, जहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा तो क्या missing है? I know. है ना? And the only thing you need to bring in is gratitude for that area, or for that particular thing, or for that particular person. These things were never ever noticed, that these things can also be paid gratitude to. So taught that art to pay gratitude to every little thing and let it happen, and it happens. Yeah, definitely. It happens because you started believing in magic. Yeah. Otherwise, कोई और होगा तो कहेगा, देखा ये हमेशा ही शुरू में तंग करने लग गया, शुरुआत में चलता ही नहीं है, फिर अपने आप चल पड़ता है ना? But now, because you know that this is because the gratitude's magic is working, you could relate to it. And there are no coincidences and no accidents. जो होता है वो इसी वजह से होता है कि हम लोगों ने उस एरिया में कितना ग्रेटिट्यूड दिया है. पर जहां हमने we have taken things for granted, वहीं पे हमें कहीं ना कहीं challenges या problems, वो issues आने शुरू होते हैं. And depth has also increased. मतलब अब gratitude वाकई में अंदर से निकलता है. Thank you. It's not that you're saying it superficially कि हमें कुछ कहना है. It's not mechanical anymore. Mechanical कुछ नहीं है. अब now it is coming from inside for everyone. And ऐसा लगता है बस उसको बोल दिया सब हमारी तरफ से, we have done our best. कि हमारी तरफ से we have completed the cycle. Now let's move on to the next one. Like that. That's right. And you know what? जैसे हमने कल relationship का किया था ना, तो कई बार ना रिलेशनशिप में हमें वो ग्रेटिट्यूड ढूंढने में प्रॉब्लम आती है.
So there's one more thing which is not from this book, but I can just share it because it is very effective. So before that, Suma, Deepak, of course, you can also switch on after some time if everybody is taken bath in your room. And Bijal and Monica, Ranjan, I would request everybody to please switch on your videos. So आज का हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम एक दूसरे की शक्लें देखेंगे. आप सबको मेरी शक्ल तो दिखती है रोज सुबह, अब मैं तैयार त्यूर होके बैठ जाती हूँ. अब मुझे भी तो आप लोगों की शक्ल दिखनी चाहिए ना, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लग रहे हो और कितने ब्राइट और full of excitement for the session. So I want everyone to please switch on your videos. Hello. Yeah. So what I was sharing was that, you know, in every relationship, wherever you are holding on to something, you can also add gratitude is from this book, but I'm just giving you one extra thing which may help you, because कितनी बार हमारे पास gratitude लिखने के लिए बहुत struggle होती है, हमें वो इंसान के लिए कुछ निकलता ही नहीं अंदर से. So you can actually start practicing forgiveness. ये forgiveness के लिए एक बहुत अच्छा एक technique है, I would say technique है, which is called Ho'oponopono. I don't know how many of you know. आप में से किसी को Ho'oponopono के बारे में मालूम है? Just write yes or no. Yes, I know. Okay. Yes, I know. Here. Okay. I Yeah. also know. Okay. Who else knows about it? Yeah, I have learned I have listened to this thing thanks to Suma, the video which she has sent, and I started following Nitya Shastri. I've heard this word from him only. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Suma. Thank you so much. Yeah. Who else has heard about it or know what is the technique? I heard about it, ma'am. Practice it. Okay. Yeah. So if I'll just give you a little you know background about it कि ये क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो हवाई में एक you know एक हॉस्पिटल था जिसमें एक चैम्बर था जिसमें ना मेंटल जो लोग बड़े वायलेंट थे ना, मेंटल हॉस्पिटल था. उसमें एक रूम ऐसा था, चैम्बर ऐसा था या ऐसा वार्ड था जिसमें ना ऐसे लोगों को रखा जाता था, वो लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे. और may I request everybody to be on mute, please? Puran, I'm going to make you co-host. If you could please manage that for me. Jagjit, actually, I might go out in between because I have, as I requested you, I have a meet, and yeah, surely. Meanwhile, I'll do that. So I request Bijal kindly unmute herself. Bijal, can you go on mute, please? Okay, done. Okay. So what I was creating was कि हवाई जो आइलैंड है वहां पे एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसमें कि एक ऐसा वार्ड था जहां पे ऐसे लोगों को रखा जाता था जो बहुत ही वायलेंट होते थे और उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था. तो वहां की कहानी ये थी कि वहां से ना जितने भी लोग होते थे, जो नर्सेज होती थी या पीपल यू नो द अटेंडिंग स्टाफ होता था, वो सब ना छोड़ के चले जाते थे कि उस वार्ड में कोई जाना नहीं चाहता था. इवन डॉक्टर्स डिडंट वांट टू गो बिकॉज वो लोग इतने वायलेंट होते थे कि वो लोगों को मारते रहते थे. दे रियली यूज्ड टू यू नो बहुत ज्यादा हार्म करते थे लोगों को. तो देन दे इनवाइटेड वन जेंटलमैन, ही वाज अ डॉक्टर. उसको उन्होंने बुलाया, आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट आई वुड शेयर द लिंक in the group so you can actually read it and see the video also. There's a video also about it. So there was a person, he was invited and he came and sat in the office. तो उस वार्ड में 3 लोग थे जो बहुत वायलेंट थे. तो he sat in the office, जो उनका ऑफिस था, उस ऑफिस में बैठ के उसने करा क्या, उन लोगों की तीनों की फाइल्स निकाली and he used to just look at the file. And after a month, धीरे धीरे उनके ना बिहेवियर में अपने आप चेंज आना शुरू हो गया. And over a period of 3 months to 6 months वो सबके सब ठीक होके चले गए. तो सबने पूछा, उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा कि आप तो उनके
वार्ड में गए भी नहीं, तो आपने ऐसा क्या किया कि वो लोग क्योर हो गए और वो अपने आप चले गए, उनका वायलेंस कम हो गया. सो ही सेड दैट वी ऑल आर कनेक्टेड. हम सब एक दूसरे की जिंदगियों से जुड़े हुए हैं. When you start taking responsibility of other person's suffering and behavior, and आप उनसे माफी मांगना शुरू कर देते हो और उनको अपने ही मन में माफ कर देते हो, तो that is what brings that change. So वो ओपनो में क्या बोलते हैं? I am sorry, please first कहते हैं please forgive me, I am sorry, thank you, and I love you. These are the 4 sentences they say. And what he did was only this. He used to look at that person's picture, file khol ke, and he used to say, please forgive me, I am sorry, thank you, and I love you. So when you start saying this to a person, वो gratitude का base बन जाता है कि कहीं ना कहीं आपने उसको अपने आप को forgive किया कि आप उसके लिए कुछ होल्ड करें. You are taking the responsibility. You're not making that person responsible. आप अपना जो वो है ना, क्या कहते हैं, पावर, वो किसी और के हाथ में नहीं दे रहे हो. वो बंदा आपको ट्रिगर नहीं कर सकता है, बिकॉज पावर इज इन योर हैंड्स नाउ. एंड व्हाट यू से इज कि आपने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार हूँ. यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग. ये चीज कहना दैट आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर यू हैव डन टू मी इज अ ह्यूज थिंग. बट व्हेन यू स्टार्ट, यू नो, इस प्रैक्टिस के बारे में जब आप वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं ना, it actually gives you so much of this thing कि अच्छा ये possible है, why not? Then you start doing this practice and it actually changes that person. Actually में देखा जाए तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम वाइब्रेशन से तो चेंज कर रहे हैं अपने उस इंसान की तरफ, है ना? और ग्रेटिट्यूड में भी हम वही कर रहे हैं. तो जहां पे आपको ग्रेटिट्यूड अभी लाने में प्रॉब्लम आ रही है, you can watch this Ho'oponopono वाला video and incorporate that, which will help you going forward to create and generate that gratitude ka feeling towards that person. So I just wanted to share because it just came up, क्योंकि relationship में ये बहुत मायने रखता है. Yeah, and आपको हैरानी होगी कि उस दूसरे इंसान का behavior अपने आप कैसे change हो जाता है. जो हमने कल भी बात किया था ना कि when you start paying gratitude for that person, और जैसे वो आपका गड्ढा भरना शुरू होएगा जो आपने इतनी blames और क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग की हुई है, और वो जब 10-10 स्टेप्स नीचे चला गया है, आपका जितना भी गया है, पता नहीं कितनी करी है, जब आप ग्रेटिट्यूड से उसको फिल करना शुरू करते हैं और वो एक लेवल पे आ जाता है, उसके बाद आपको उनके जिंदगी में आपको उनके साथ अलग सा एक बिहेवियर नजर आना शुरू हो जाएगा. वो अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे. So that is what this Ho'oponopono will also help you in achieving. So if you want, you can also search it on the Google, and there's lots of videos and information available on this. तो मैं जब 2009 में मैंने लैंडमार्क फोरम सेमिनार किया था, फोरम के बाद, तो वहां पे किसी ने शेयर किया था. एंड हमारे जैसे ग्रुप्स थे, ग्रुप में किसी ने ये स्टोरी शेयर की थी. And then we started circulating, and now तो when you go on Google तो बहुत सारी ऐसी आपको articles भी और videos भी मिल जाएंगे. So this is one thing. Okay, so अभी जितने भी लोग आए हैं, so I think now I can create that game. So what we are going to create, Puran and I, what we are creating today is we are going to create a game of buddy game. So आप में से कितने लोग डिफेंस बैकग्राउंड से and they know what is who's a buddy, right? Yes or no? If you know who's a buddy and what is the role of a buddy, and if you want you can unmute and speak also. Okay, Deepak says no. Okay, Mohita says yes. Who else? Yes, no, maybe. Okay, Bijal says no. Okay. Okay, Prakhar says yes. Suma says, okay, buddy is a friend. Buddy is much more than a friend. So ma'am, you should clear, no? तो friend. अभी करते हैं, थोड़ा सा सब्र रखो बिजल जी,
Okay, so again I said yes. Okay. Okay. Ma'am, I want to ask you one thing. Yeah. कि जो आपने पूछा कल बता था रिलेशन के ऊपर, जो अभी आपने रिलेशन के ऊपर बताया है, जो पहले का बैकलॉग रहता है दिमाग में कि वो निकालने की कोशिश करते हैं, पर कभी ना कहीं अटक जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं फीलिंग के साथ थैंक यू, फॉरगिवनेस, सॉरी, एवरीथिंग, पर वापस कभी ना कभी वो बैकलॉग वापस आ जाता है। तो वो कैसे उसको निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के? हाँ, मैंने अभी बोला ना, आपने कितना गहरा गड्ढा खोदा है वो हमें नहीं पता ना। आपने कितनी कंप्लेंट्स की हैं या कितने उसके बारे में क्रिटिसिज्म किया है या उसको ब्लेम किया है। तो आपको मालूम है, अगर आप एक कंप्लेन करते हो तो आपका रिश्ता 10 स्टेप्स नीचे चला जाता है ना। सो फॉर एक ब्लेम या एक कंप्लेन के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड देने पड़ते हैं उसको उसी लेवल पे वापस लाने के लिए, क्योंकि वो 10 स्टेप्स नीचे चला जाता है। राइट। आपको नहीं मालूम आपने उस रिश्ते में कितना गहरा गड्ढा खोदा है ना। और जब आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करते हो तो आपने अगर मान लो 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा हुआ है और आपने 10 दिन ग्रेटिट्यूड किए, तो आपका 10 फुट से लेकर वो आपका 4 फुट पे आ गया, मतलब इतना गड्ढा भर गया, पर अभी भी तो 4 फुट रहता है। ओके। जब वो 4 फुट, जब तक वो उसको आप भरोगे नहीं, जब तक वो वाला डिस्टेंस को आप कवर नहीं करोगे, जब तक आप उस लेवल पे नहीं आओगे जहां से वो रिश्ता शुरू हुआ था और जिसके बाद वो नीचे जाना शुरू हुआ, तब तक उस आपको ये स्ट्रगल रहेगी ही रहेगी। और इस स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए ही मैंने बताया है, या तो यू कैन डू होपनो व्हिच विल गिव यू थोड़ा सा आपका वहां से माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव में जाएगा, एंड देन यू कैन राइट योर ग्रेटिट्यूड। इट मे हेल्प यू, बट रास्ता एक ही है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, नथिंग एल्स। और जितना करते जाओगे, जितनी जल्दी गड्ढा भरोगे, उतनी जल्दी आपको ये वाली फीलिंग्स आनी कम हो जाएंगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और वही उस बुक ने बोला था कि कीप डूइंग इट till the time you start feeling good about it, or you start feeling normal about it and not feeling any negative thought about that person. जब तक आपकी वो फीलिंग वो वाली नहीं आती, तब तक ग्रेटिट्यूड करते ही चले जाओ। Yeah. Does this answer your question? Thank you, ma'am. Yeah. Okay. So some of you know about a buddy and some of you don't know about a buddy, and some of you know a little bit about buddy. So buddy, जो डिफेंस में buddies बनाए जाते हैं, and उसमें क्या होता है कि that buddy is responsible for your well-being and your winning. आप जहां भी लड़ाई पे जा रहे हो, अगर वॉर पे जा रहे हो, फ्रंट में भी जा रहे हो, तो वो बडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर कि आपको जिंदा, अगर आप जिंदा हो या आपको चोट लगी है, इवन इफ दैट बडी इज डेड, तो वो बडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वापस लेके आना है अपने साथ। सो बडी इज योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। और बडी ऐसा इंसान होता है जिसकी जिंदगी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। आपको आपकी जिंदगी के हर पहलू के बारे में उसको सब पता होता है और वो आपको हर स्टेप पे सपोर्ट कर रहा होता है, और वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है फॉर योर विनिंग द गेम। तो आप जो भी गेम खेलते हो उसमें वो आपको जिताने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। और एक बडी की जीत इसमें है कि उसका बडी कितना जीत रहा है। वो खुद तो, हम लोग क्या करते हैं जब हम गेम खेल रहे होते हैं, जब हम रेस खेल रहे होते हैं, तो हम अगर मैराथन रन कर रहे हैं या 100 मीटर्स कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वी जस्ट फोकसिंग ऑन आवर ओन सेल्फ ना। हम अपना ही गेम को बेहतर बनाने के लिए हम भाग रहे हैं कि हमें फिनिश लाइन तक पहुंचना है सबसे पहले और सबसे कम टाइम में, राइट। और जब हम रिले रेस खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि हम बैटन कितने स्मार्टली पकड़ाते हैं और कितने इफेक्टिवली वो दूसरा पार्टनर हमारा जो टीम का है वो भाग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी, है कि ना? बोलो yes or no, right? Yes or no? You know the difference between 100 meters race when you're running alone, and then there is a relay race where there's a team which is running. Yeah, I want others also to write. Do they know the difference now between relay and solo? Like when you're running
marathon or you're running 100 meter, 400 meter. Yes, yeah. So that is a difference. So वहां पे टीम होती है, यहाँ पे 2 जने होते हैं. So बडी का काम होता है कि आप जो भी गेम खेल रहे हो उसने आपको जिताना है और आपने उसको जिताना है, क्यों आप उसके बडी हो, वो आपका बडी है. Yeah. So to make this game, जो हम अभी गेम खेले, it's a game only. Like life is a game. हम जो भी गेम खेल रहे होते हैं उसी गेम में हम जीत रहे होते हैं. अगर हम विक्टिम बन के खेल रहे होते हैं तो हम विक्टिम वाला गेम जीत रहे होते हैं, और अगर हमको विनर बन के जीतना है, विनर वाला गेम खेलना है कि मुझे विन करना है, मुझे अपनी लाइफ के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो उस गेम के लिए हम उसमें विन कर रहे होते हैं, है ना. बट समटाइम्स टू विन दैट गेम हमें कुछ सपोर्ट चाहिए होता है ना. तो जितना सपोर्ट मैं दे पा रही हूँ, जितना सपोर्ट पूरन दे पा रहा है, वी आर ट्राइंग टू डू दैट. बट तो उसको थोड़ा और पुश करने के लिए, थोड़ा और उसको वेलोसिटी देने के लिए. So this is a game we are starting from today. Are you people excited about it? If you're excited, just write yes, or you can heart bana sakte ho, just to show that you're happy and you really want this kind of a game to play. Yes. 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 Great. Yes. थोड़ा hearts कम मिले हैं मुझे. Going forward, I need more hearts. मैं बहुत लालची होती जा रही हूँ. Great. So thank you everybody. Okay, तो अभी आपको क्या करना है, अपने ग्रुप में we are 21 people, so you have to pick a buddy. हम आपके लिए बडी नहीं चूज करेंगे, आपने अपना बडी चूज करना है और आपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है कि आपका बडी कौन है, एंड यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ आल्सो. सो हु यू चूज एज योर बडी राइट नाउ. और एक के 2 बडीज भी हो सकते हैं, मतलब 1-on-1 भी, और मतलब 3 जने भी हो सकते हैं, पर 3 से ज्यादा मत रखिए, बिकॉज वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. माइंड इट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, because you have to make your buddy win and vice versa. तो अभी से ही आप ढूंढ ले आपका बडी कौन होने वाला है, और अभी चैट बॉक्स में लिख दे, या ड्यूरिंग द सेशन कभी भी आप लिख दें, या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दे, ताकि हमें पता रहे किसका कौन सा बडी है. और अब बडी का रोल क्या है, आपने उनसे उनके ड्रीम्स पूछने हैं, टॉप 3 ड्रीम्स. पहले 10 ड्रीम्स पूछ लीजिए, फिर उनके टॉप 3 ड्रीम्स पूछने हैं आपने कि उनके 3 ड्रीम्स क्या हैं. अतुल, आई वुड सजेस्ट रंजन को मत बनाए, बिकॉज जहां पे कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है वहां पे काम नहीं होता. सो पिक समबडी यू डोंट नो, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड विद पीपल एंड नो देयर लाइव्स. या बिकॉज हम लोग इस जर्नी में पिछले 15 दिन से चल रहे हैं साथ में, बट हमें एक दूसरे के बारे में नहीं मालूम है. उतना ही मालूम है जितना हम यहाँ पे शेयर करते हैं, और उसमें हम कितने कंजूसी दिखाते हैं हम सबको पता है ना. तो अभी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की जिंदगी से कुछ सीख पाए, क्योंकि हम हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो जब आप उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे तो आपको अपनी जिंदगी के लिए कुछ मिलेगा. या तो आपने उनकी जिंदगी के बारे में जानना है, उनके 10 ड्रीम्स सुनने हैं, क्या ड्रीम्स हैं. उसके बाद उनके 3 ड्रीम्स के लिए आप अकाउंटेबल हैं कि उनके वो ड्रीम्स सेशन के खत्म होने तक कितने उनके करीब आए हैं और कितने उनके ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं. दैट इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बडी. सो आर यू गेम फॉर इट? से यस और नो. राइट, यस और नो? यस. गुड प्रखर. Good, Deepak. Thank you, Darshan ji. Yes, Atul. Thank you. Mohita, thank you. Thank you, Ranjan ji. Yeah. So everybody, it seems, is excited and ready for it. So let's start this game today. And so keep writing the names of your buddies. Puran and I, we will make a note of it. And
So whenever you feel that your body needs support, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप उसकी हेल्प जितना कर सकते थे आप कर रहे हो, और आपको लगता है कि मेरी जरूरत है वहां पे या पूरन की जरूरत है, so reach out to us. We are your resources. So resources को use करना सीखें. आपके जो resources हैं आप उनको कैसे utilize कर सकते हैं. We are here to help you, right? So मैं और पूरन हम लोग आपके साथ खड़े हैं. आपको जहां पर भी लगे कि आपको हमारी जरूरत है, just send a message or just send or just call us up and we will support you. Okay, fine. So thank you everybody for being such supportive team, and let's play this game from today onwards. Okay, so today's chapter is a very important chapter because हम लोगों की जिंदगी में हेल्थ की कितनी अहमियत है इसका एहसास पहले हुआ था या नहीं हुआ था. इस स्टेज पे आज के दिन पे हमें इस चीज का सबको बहुत एहसास है. जब से ये पेंडेमिक आया पिछले साल से, सडनली हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी की चिंता हो गई. सडनली हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करने लगे हैं. सडनली हम वो चीजें खा रहे हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है. वी हैव स्टार्टेड मूविंग आवर बॉडी. अगर हम काउच पोटैटोज बने हुए थे या हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं था, तो हम कुछ छोटा छोटा थोड़ा कुछ करने लग गए. या यस और नो, है ना? हम लोगों को पेंडेमिक ने थोड़ा हिला दिया ना हेल्थ को लेकर. तो अब या फिर हमें कहीं ना कहीं जब पेन होनी शुरू होती है या कोई तकलीफ आती है बॉडी में, तो हमें एहसास होता है नहीं यार, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए. तो आज का चैप्टर इज ऑल अबाउट हेल्थ, एंड विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट area of our life. Now, in the beginning of the book, जब हमने जर्नी शुरू करी है, there was one chapter about health. अब उसमें हमने एक कोटेशन है जो हमने सबने अपने घर में कहीं ना कहीं लिख के रखी थी. I want one of you to unmute and just speak. What was that one sentence which we were supposed to write it and keep it alive for us all the time? So somebody please unmute and say. Yeah? Gift of health is keeping me alive. Yeah. And how many of you have written it somewhere and you're actually looking at it and reading it with a lot of feelings every day? Yes, yeah. Yeah. Thank you, Meenu. Thank you, Rahul. Yeah. बाकी सबने भी लिखा है ना? Yes. Yeah. Okay. Fine. Yes, ma'am. Yes. Good. Yes, ma'am. So आप लोग सब लोग ना अब going forwards we want to make it very interactive. So I'll keep asking yes and no. तो थोड़ा सा मेरा साथ देना है आपने और just keep responding, right? Okay. So thank you very much and let's start today's chapter. So who's going to read today's chapter? Ma'am, me, Rahul. Okay. Can I read? Yeah, sure, Rahul. Why not? Okay, thank you. Okay, so we are on day 16 today, and first of all, congratulations and that you have covered almost half of it. आपने आधी जर्नी पूरी की है और अभी हमारा 16th डे आ गया, तो आपने इतनी सारी प्रैक्टिसेस की हैं ग्रैटिट्यूड की और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मूव हुई है टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड. So congratulations and let's begin today's chapter. Okay. Day 16, Magic and Miracle in Health. Yeah. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. Okay, so it says miracles are not contrary to nature. जो नेचर है उसके लिए मैजिक जो है वो कॉन्ट्रेरी नहीं है, उसके मतलब अगेंस्ट नहीं है या उसके खिलाफ नहीं है या उसके हाउ डू आई से इट, मैजिक एंड नेचर आर देखा जाए तो एक ही है, वो हैंड इन हैंड चलते हैं. पर हमें नेचर के बारे में जितना मालूम है हम उतना ही जानते हैं. अब
आज से पहले कितने लोगों को पता था कि जब तक हमने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं सुना, उसके बारे में वीडियोस नहीं आने शुरू हुए, कि हमारी बॉडी अपने आप को खुद हील करती है अगर हम उसको वो टाइम देते हैं. So this was part of the nature, and it is like a magic, na? It's a miracle. कि अगर आप 16 घंटे का या 14 घंटे का गैप देते हैं खाने में, तो आपकी बॉडी अपने आप को खुद रिपेयर करती है, which was nature, and it is a miracle, right? कि वो अपने आप को क्योर कर सकती है बॉडी. हमारे लिए तो, हमें तो ये दिखता है ना कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा हर चीज के लिए. हमें तो पेट में दर्द है तो भी डॉक्टर के पास जाना, सर में दर्द हो रही है तो भी डॉक्टर के पास जाना, और एक पिल खानी और मतलब वही इलाज है उसका. But when you know that you can heal your life yourself, your body is capable of healing itself. That is what the nature is, and that is magical, ना? और वो तो ऑलरेडी था, पर हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं था, बिकॉज हमारे नॉलेज के हिसाब से नेचर इज ओनली टिल द, जितना हमें नेचर के बारे में मालूम था. बट नाउ बिकॉज देयर इज सो मच बीइंग टॉक्ड अबाउट इट, we are also becoming aware of it, that this magic is available. This is actually a miracle कि हमारी बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेती है ना? कि अगर हम रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले और मतलब 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, और अगले दिन हम 14 या 16 घंटे के बाद फूड लेते हैं, तो उतने टाइम में हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने का. अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम हर टाइम खाते रहते हैं, भूख लगी हो ना लगी हो, टाइम हो गया खाने का तो खाना खाना है ना? और खाना खाते हैं रात को, मतलब 11 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, उसके बाद हम सो रहे हैं. तो बॉडी इज वर्किंग, बिकॉज एक टाइम पे वो एक ही चीज पर फोकस करती है, और जब वो खाना खा रही है तो उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे इसको डाइजेस्ट करना है. तो सारी फैकल्टीज जो है हमारी बॉडी की, जो कुछ भी एनर्जी है, वो सारी की सारी हमारी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है. और अगर आपने 7 बजे खाना खा लिया, 2 घंटे आपने मतलब उसके खाने सोने से पहले खा लिया, एंड यू वॉक लिटिल बिट, सो आपका डाइजेशन सिस्टम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग एंड इट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. और आपने लाइटर खाना खाया, बहुत हैवी खाना नहीं खाया जिसको खाने को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बोलते हैं ना डिनर शुड बी लाइट. तो आपने लाइटर खाना खाया और आपका वो खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद आप सोए और 16 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया. तो अगर पहले के 3-4 घंटे भी उसको खाना खाने में लगे या 6 घंटे भी लगे, बाकी के 12 घंटे, 16 घंटे में से बाकी के 14 घंटे बॉडी को टाइम मिला अपने आप को रिपेयर करने का. इसीलिए नाइट बनी थी, इसीलिए रात बनी थी. नेचर ने इसीलिए दिन रात बनाए थे कि रात को आपकी बॉडी को रेस्ट मिले, ताकि बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाए, रिजुवनेट कर पाए. पर हम वो टाइम ही नहीं देते अपनी बॉडी को. बट नाउ we have come to know that this is possible, because that was not contrary to the miracle that body can heal itself. It was natural, but now we have come to know about it. But इससे पहले हमारे लिए वो available नहीं था. It was contrary to our knowledge about the nature. Yeah, please continue. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Okay, so जब हम health की बात करते हैं तो we are talking about full well-being. We are not only talking about physical health. We are also talking about mental health as well as emotional health. आज के दुनिया में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पीपल वट एवर डिसीजेस दे हैव इन देयर बॉडी, फिजिकल जो डिजीजेस हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू लाइफस्टाइल. और लाइफस्टाइल से क्या हो रहा है, जिस तरह की हमारी भागदौड़ की जिंदगी बन गई है, जिसमें ना हमारे पास खाने के लिए टाइम है, ना हमारे पास रेस्ट के लिए टाइम है, ना हम अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं. सोने से पहले भी हम मोबाइल्स पे होते हैं और हमारे ब्रेन को हम अनवाइंड करने का टाइम नहीं देते हैं, और सारा टाइम हम लोग सिर्फ भाग रहे होते हैं. So because of that there is so much of stress, and mind you, don't forget, we are actually loading our brain with so much of negative thoughts.
which is taking its toll. तो हमारी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को वो इम्पैक्ट करता है. अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इमोशनली वी आर नॉट स्टेबल, इमोशनली वी आर हमारे इमोशंस हिल जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, वो हमें स्ट्रेस देना शुरू करते हैं. स्ट्रेस होगा, बीपी होगा, स्ट्रेस होगा, एसिडिटी होगी, स्ट्रेस होगा, आर्थराइटिस होगा, स्ट्रेस होगा, पता नहीं क्या क्या होगा. तो ये सब इंड्यूस्ड किससे हुए हैं? हमारे लाइफस्टाइल से, है ना. तो क्या हमारे भगवान ने, यूनिवर्स ने या गॉड ने या ऑलमाइटी ने या जिस भी पावर को आप मानते हो, हमें इस दुनिया में भेजा था तो क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए भेजा था? नो, नॉट एट ऑल. हमें ये जिंदगी मिली थी टू हैव हैप्पी, हेल्दी एंड अमेजिंग लाइफ. बट हमने अपना क्या हाल बना लिया है कि वी आर स्ट्रेस्ड आउट, वी आर इरिटेबल, we have no peace of mind, no satisfaction, and lots of ailments and dis-ease in our body. Yeah, and these are all related to health, not only physical, and they are all interconnected. Yeah, let's continue. Yep. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracle in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv/stories. Okay, so आप अपने जिस भी हेल्थ के एरिया से इस टाइम पे जूझ रहे हैं, चाहे वो आपके हेपेटाइटिस है, चाहे आपका वो हर्पीज है, चाहे वो आपका कोई नर्व खिंच गई है, या आप कहीं गिर गए हो, या आपके चोट लगी है, या आपका बीपी है, या आपका डायबिटीज है, या आपका आईसाइट है, कुछ भी आपका हेल्थ रिलेटेड इशू है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी और फॉर योर फिजिकल बॉडी. और अगर आपको लगता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आप ये जो इसकी रोंडा की वेबसाइट है सीक्रेट की, www.thesecret.tv/stories, आप वहां जाके पढ़ सकते हो. इनफैक्ट आप जिस भी हेल्थ इशू से डील कर रहे हो, आप एक्चुअली वहां पर सर्च कर सकते हो उस हेल्थ इशू के लिए, और आपको हजारों वहां पे ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी जहां पे लोगों ने अपने आप को उस एरिया ऑफ हेल्थ में जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप को क्योर किया. एंड दैट विल गिव यू सम एनकरेजमेंट. इफ दे कैन डू इट, you can do it too. And the only thing you need to do is pay gratitude. Yeah, start. Okay. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good body care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. Okay, अगर आप ये सोचो कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड से हो जाएगा तो वो नहीं होगा. अगर आपको अपनी बॉडी, अपने शरीर को अच्छा रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, तो जो चीजें जरूरी है उसके लिए, अगर आपको पौष्टिक खाना खाना जरूरी है उसके लिए, तो आपको वो भी खाना पड़ेगा. आपको अगर मेडिटेशन करना जरूरी है तो आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा. और आपको अगर ज्यादा तकलीफ है तो आपको दवाई भी खानी पड़ेगी डॉक्टर से लेके. और अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, या कोई और ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको कराना है, तो आपको वो भी कराना पड़ेगा. सिर्फ ग्रैटिट्यूड अकेले से नहीं होगा, बट इट विल डेफिनेटली स्पीड अप योर रिकवरी. आपकी जो रिस्टोर करनी है ना हेल्थ, उसको रिस्टोर करने में आपको वो जल्द से जल्द रिस्टोर करेगा. जब आप ये सब चीजें भी साथ साथ कर रहे हो और साथ में ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो आप बहुत जल्दी अपनी उस बॉडी के उस पार्ट की उस हेल्थ को रिस्टोर कर पाएंगे. या प्लीज कंटिन्यू. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more.
To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Okay, तो अगर कहीं पे भी आपको तकलीफ है, मान लो आपको आप गिर गए, आपके पैर में दर्द हो रही है, या आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, या कुछ भी है, तो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना इजी नहीं है, बिकॉज आप पेन में हो. तो बट इफ यू नो कि ग्रेटिट्यूड देने से ये जल्दी ठीक होगा, तो आप दोगे ना, बिकॉज इट इज ओनली फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी विच कैन ब्रिंग रिस्टोर हेल्थ. बट नेगेटिव फीलिंग्स तो उस टाइम आएंगी आएंगी, बिकॉज पेन तो हो ही रहा है ना. बट उस टाइम पे अगर आप स्विच कर लेते हो, पेन है बट यू स्टिल पे ग्रेटिट्यूड कि इतने टाइम तक तो उसने साथ दिया है ना, अभी तक तो सीधा ही चल रहे थे, अभी पैर मुड़ गया तो क्या हुआ. उस पहले टाइम के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो. जब आप उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कितनी जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाएगी. बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे to restore health. Hanji. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, their thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body brings more problem to your complaint about, and so complaining about your body or appearance puts your health at risk. Okay, तो अभी क्या होता है कि हमें ना, स्पेशली आई डोंट नो अबाउट मेन बट आई कैन ओनली टॉक अबाउट वुमेन, हम लोगों को ना बड़ा लगता है, जैसे शीशे में देखें, यार आज तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, जब भी कुछ पहनो देख मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, है ना, या मेरी ये चीज दिख तो नहीं रही है, या मैं ये चीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, या मेरे फेस पे ये स्कार कैसे है, इसको मैं कैसे ठीक करूं, या मेरे आईज के नीचे डार्क सर्कल क्यों हो गए हैं, या मेरे बाल क्यों झड़ने लग गए हैं. तो हम लोग ना बड़े क्रिटिसाइज करते रहते हैं अपने आप को. जैसे आई हैड शेयर्ड आई थिंक इन नवंबर और दिसंबर के सेशन में कि मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी. यू नो, इट वाज वेरी ड्राई, मतलब सैंड पेपर जैसी हो गई थी. सब कुछ करके देख लिया, बिकॉज विंटर्स वर सेटिंग इन, एंड सब कुछ लगा के देख लिया, बादाम रोगन लगा लिया, दुनिया भर की चीजें लगा ली, सब क्रीम्स लगा ली, कुछ हुआ वो ठीक ही नहीं हो रहा था. इट वाज एवरी टाइम आई यूज्ड टू टच, आई यूज्ड टू फील सो, ये क्या हो रहा है मेरी स्किन को, यू नो, आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लाइक दैट. But then when we started this gratitude ka practice, and then I started paying gratitude to my skin, and I started, you know, pampering my skin. Usko main roz mirror ke samne khadi hoke boलती, my skin is looking so good, I'm so glowing and all, and people have complimented me कि मेरी skin कितनी अच्छी हो गई. Yeah, and अभी कुछ दिन से मुझे फिर से ना कहीं कुछ दिखने लग गया अपने फेस पे, and I've started seeing that it has started showing again those kind of साइंस कि मेरी स्किन का ग्लो कम हो गया. मेरी स्किन में कहीं ना कहीं मुझे कुछ कुछ हल्के हल्के से ना, जैसे डार्क पैचेस हल्के हल्के से दिख रहे हैं कि वो शायद उभरने शुरू हो रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं मुझे वरी दे रहे थे. एंड देन आई जस्ट कॉट माई सेल्फ, येस्टरडे ओनली इट हैपेंड, आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ, ऐसे यार सब लोग कह रहे थे मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई, क्या हो गया मेरी फिर से स्किन, यू नो, इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड एज इट, यू नो, इट वाज लुकिंग. एंड आई सेड क्यों लग रहा है ऐसा, ऐसा क्या किया मैंने, Did I do any different thing? मैंने ऐसा कुछ change किया अपने routine में? No. हाँ, there are two things. One, I've stopped paying gratitude to my skin. I've stopped loving my face. I've stopped saying I'm looking so good. I have a skin, and I have a flawless skin of a 35 years old, which I used to पूरा दिन गाती रहती थी मैं. वो मैंने कहना बंद कर दिया. The other thing is I used to have lot of fruits and lot of water. तो मेरा वाटर कंटेंट बॉडी में कम हो गया. So I actually could catch it. Okay, what is it that is causing it? So I started paying gratitude. Similarly, I had shared, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, and मतलब ऐसे गुच्छे निकल रहे थे, ऐसे हाथ लगाती थी, ऐसे जा रहे थे, and of course it gives you worry. तो सबसे पहला थॉट तो वरी ही आता है जब भी कोई हेल्थ इशू आता है, या हमारे लुक्स में कुछ हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है. बट Now we know we have a choice. वरी करेंगे तो वो डिटीरेट होगा, अगर हम ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो इम्प्रूव होगा. Now every time I comb my hair, every time I touch my hair, I say I have such beautiful silky hair, thick and lustrous hair, and
जहाँ इतने उतरते थे वो इतने से रह गए, उतरते हैं, यानी कि नहीं झड़ने बिल्कुल बंद हो गए, बहुत कम हो गए, मतलब 10% रह गए। एंड आई नो विद ग्रेटिट्यूड आई कैन ब्रिंग इट टू 0, ये बिल्कुल ही झड़ने बंद हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट, आप अपने जिस भी सिचुएशन में हेल्थ को लेके या अपने लुक्स को लेके, यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग देम ओनली बाय पेइंग ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. ओके, तो ये वाला रिडल, ये जो रिडल था बुक के शुरू में था, आप सबको याद है कि ये रिडल था जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं था, सिर्फ सेंटेंस था विदाउट ग्रेटिट्यूड। सो द मिसिंग लिंक वाज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड व्हिच वाज मिसिंग वाज ग्रेटिट्यूड। तो जब आप ग्रेटिट्यूड जिस भी एरिया, क्योंकि ये बार बार चैप्टर्स में आएगा और आया भी है पहले, जिस भी एरिया के ऊपर आप काम कर रहे हो वहां पर जब आप हेल्थ की जगह पे, जैसे अगर हम आज हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने हेल्थ लिखा है, अगर यहाँ पर आप मनी लिखोगे, रिलेशनशिप लिखोगे, तो वेयर एवर देयर इज अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो वाला एरिया जो वो डिटीरिएट हो जाता है। व्हाटएवर यू हैव विल आल्सो बी टेकन अवे, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, या एंड वेयर एवर यू हैव ग्रेटिट्यूड, जो है उसमें भी आपको अबंडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। सो सिमिलरली इन हेल्थ, आपके हेल्थ के जिस भी एरिया में आपके प्रॉब्लम है, इसका मतलब वहां पे लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है। जस्ट स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू हील इट, टू गेट अबंडेंस ऑफ हेल्थ इन योर लाइफ। हाँ जी। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feeling of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracle in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness, and we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the result. Okay, तो आज का जो चैप्टर है वो is got triple pronged approach to heal our health, to have magic and miracles in our health. तो उसमें हमें 3 ऐसी एक्टिविटीज जो हैं, 3 ऐसी चीजें करनी है जिससे कि हम उसको रिस्टोर कर पाए। ओके, तो स्टेप नंबर 1, हेल्थ यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट। जैसे आपने देखा, हाँ, ये पूरी बुक ही ऐसे बनी हुई है कि हम पहले पास्ट की चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, फिर प्रेजेंट के लिए देते हैं, फिर हम अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं। तो पहले हमने पास्ट के अपने गड्ढे जो भरने हैं, पहले वो भरने हैं, या तो अभी हम इसमें जो 3 pronged है, तो 3 pronged में यही है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अभी पहले वो बताएगा कि हमने पास्ट के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड देना इन द एरिया ऑफ हेल्थ। हाँ जी, please read. Step number 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and the adult life. Think about the times when you felt full of energy and you are happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magical word thank you and feel sincere gratitude to those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Okay, तो नंबर 1 आपको अपने पास्ट में जाके देखना है कि जब आप बच्चे थे, या आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या आप व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, एडल्टहुड में थे, शुरू में, तो आप में कितनी एनर्जी थी। तो आपको ऐसे 3 इंसिडेंट्स याद करने कि जब आप यू वर फुल ऑफ एनर्जी एंड यू वर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो इट कुड बी दैट स्कूल से आप जैसे कहीं एक्सकर्जन में गए थे, ट्रैकिंग पे गए थे, एंड यू वर रियली एंजॉयिंग इट एंड यू वर फुल ऑफ एनर्जी। आप पता नहीं कितने घंटे आप लोग चढ़ते गए और आपको बिल्कुल थकान नहीं हुई थी, या और इट कुड बी दैट यू वर इन सम इवेंट। मान लो आपके घर में किसी की शादी थी, मान लो आपके चाचा की शादी थी, और आप पूरा दिन सारे काम में लगे हुए थे, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी एंड यू वर टेकिंग केयर ऑफ दैट, एंड आप पूरा दिन उसमें लगे थे। रात को शादी में भी पूरा फुल एनर्जी के साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, और रात को फेरे हुए तब भी आप पूरा फुल ऑफ एनर्जी थे। और जब बारात डोली लेके घर पे आए
तो you were the first one who was dancing in front of the चाचा and चाची को जब घर लेके आए, and you were like full of energy and full of joy and health, and you were feeling on top of the world at that moment. So ऐसे कुछ इंसिडेंट हो सकता है, या आपके ऑफिस का कुछ ऐसा इवेंट था जिसके लिए आपको, जैसे मान लो आपने ना कोई इवेंट हुआ आपका ऑफिस का, मान लो सेल्स मीट है और उसका यू आर रिस्पॉन्सिबल और यू आर पार्ट ऑफ द टीम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड यू आर टायरलेसली वर्किंग फॉर इट. मतलब आपने देर रात तक काम किया, 2 घंटे सोए हो, 3 घंटे सोए हो, उसके बाद आपने अगले दिन फिर से पूरे एंथू और पूरे गट्सों के साथ काम किया आपने. तो ऐसे 3 इंसिडेंट्स आपको याद करने, व्हेन यू वर फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ joy and you were feeling on top of the world. आप इतने खुश थे. जब मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे पहले जो याद आता है बचपन का, तो मैं जब बाद में सोचती हूँ, बट जो सबसे पहले मुझे याद आता है, मुझे अपने लैंडमार्क के दिन याद आते हैं. आई रिमेम्बर ऑफिस के बाद हम लैंडमार्क जाया करते थे. जैसे ऑफिस से मैं 1 घंटा पहले निकलती थी, आई हैड टेकन स्पेशल परमिशन. तो जैसे सेमिनार्स होते तो मुझे पहले पहुंचना होता था, बिकॉज आई वाज अकाउंटेबल फॉर इट. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. तो मैं 5 बजे ऑफिस से निकलती थी. 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आई यूज्ड टू बी ऑन माय टोज. आई वाज ऑलवेज स्टैंडिंग, running around, doing all the, arranging everything or leading or whatever it is, but used to be full of energy. रात के 11 बजे जब घर आना होता था तो इतनी एनर्जी होती थी कि जो मर्जी काम करा लो, चाहे पूरी रात जगा लो, इतनी एनर्जी होती थी उस टाइम पे. such energy I used to feel at that time, and I just want to share. कल रात को हालांकि ये अब, क्योंकि अभी से लेकर अभी जो हम इस मोमेंट में हैं, दिस इज प्रेजेंट. इससे पहले जो भी हुआ वो पास्ट है. तो मैं अभी जो रात को हुआ मैं वो शेयर कर रही हूँ. कल रात को मैं सोने लगी, आई थिंक 11:15 बज गए थे, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू लाई डाउन. तो मैंने अपना मोबाइल, मैंने बोला इसको चार्ज पे लगा दे, थोड़ा सा चार्ज रहता है, बिकॉज सुबह उठ के मुझे सिमरन सुनना होता है, तो ये फिर उतना टाइम चलेगा नहीं. एंड देन आई सडनली रियलाइज, मैंने कहा कल तो सुबह सिमरन होगा नहीं, बिकॉज आज तो रैन सबाई है. सो रैन सबाई इज लाइक अ जागरण. जो सिखिज्म में जो पूरी रात का कीर्तन होता है उसको रैन सबाई बोलते हैं. तो रैन मतलब रात, सबाई मतलब सवा रात की सभा, सत्संग जो रात को होता है. तो इट वाज लाइव ऑनलाइन था, बिकॉज पंजाब से आता है वो, लुधियाना से डायरेक्ट आता है, एंड लुधियाना में कल रात को कर्फ्यू था. तो 9 बजे के बाद पीपल वर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउसेस. और ये रात का कीर्तन तो यूजुअली 10 बजे शुरू होता है. सो जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उन्होंने पहले बोल दिया कि आज कोई नहीं आएगा, सब लोग घर पे ही देखेंगे. और अगर आप लोग चाहो तो आप, जैसे आपके वहाँ पे गुरुद्वाराज हैं, आप वहाँ पे बड़ा स्क्रीन लगा सकते हैं और आप 9 बजे से पहले वहाँ चले जाएं, और वहाँ पे जो भी आपको चाय वाय का अरेंजमेंट करना है वो कर ले, एंड वहाँ पे आप पूरी रात रह सकते हैं, ताकि आपको बाहर नहीं आना पड़े और 9 बजे से पहले आप वहाँ पहुंचे. तो जहां भी आपके घर के पास आपका जो गुरुद्वारा है, इफ यू वांट यू कैन अरेंज इट देयर. So you can put up a big this thing, TVs and all, screens and all that. So this is how it was supposed to be done. And suddenly I remembered कि आज तो रैन सबाई है, और मैंने ना कभी नहीं अटेंड करी. मतलब बचपन में कभी करी होगी, मतलब बचपन में, मतलब I remember when I think I was in my 20s, I used to go with my mom. बंगला साहब में सरोवर के आसपास रैन सबाई हुआ करती थी once a month. So that time I went couple of times, but otherwise मैंने रैन सबाई बहुत कम अटेंड करी. So I just told my maid, I said चल इसको स्विच ऑन कर दे, टीवी, इसको मोबाइल को तो तूने चार्ज पे लगाना ही है, तो चार्ज पे लगा के इसको ऑन कर दे, या एंड सुनते सुनते सो जाएंगे. एंड व्हेन ही स्टार्टेड, एंड उसमें इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था. मेरी मेड, दो शी इज अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन, but she's been staying with me for last 18 years. She's more Sikh than I am. वो जितनी, मतलब गुरुद्वारे को जितने वो सेवा करती है और जितना उसको पाठ के बारे में मालूम है, शायद सिखों को भी नहीं मालूम होगा. And I was surprised yesterday जब वहां पर वो सिमरन करा रहे थे, वाहिगुरु वाहिगुरु, and मैं जोर से वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रही थी. She was also doing that. And then you know that जो भी कीर्तन कर रहे थे उन्होंने बोला कि आप सब लोग घर से आज सब लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, तो माय रिक्वेस्ट इज कि आप आज की रात कोई सोएगा नहीं, और आप सुबह तक, जब तक हम सुबह का पाठ नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते, सारे जने जागें. इतना मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हम पूरी रात
पार्टीज में भी और बाकी सब जगह पे भी लगाते हैं ना, कभी कभी ऐसा टाइम निकालते ही है ना फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ, तो आज भगवान के लिए निकालो. एंड यू, आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड. आई वाज, मतलब वी बोथ वर सिटिंग, वो भी और मैं भी, पूरी रात बैठे हैं हमें और हमें पता ही नहीं चला वो रात कहाँ गई. एंड फाइनली लाइक वी स्लेप्ट एट 1:45, आई थिंक 3 बजे के 3:30 बजे करीब हम सोए हैं. वहां पे अभी भी चल रहा था प्रोग्राम बिकॉज वो 4 बजे खत्म होना था. तो आई सेड लेट मी एटलीस्ट कैच सम 1 or 2 hours स्लीप बिफोर द सेशन. ये ना हो कि मैं यहाँ पर आके नो आई स्टार्ट फीलिंग लेजी or feel lethargic. So we slept around 3:45 and I was up at 5:45. So I just barely slept for 2 hours and I am full of energy right now. So I'm so grateful to my body. I'm so grateful to every part of my body that it is responding to it. I'm not feeling tired. I'm not feeling that मुझे नींद आ रही है या मुझे सोना है. I'm not. And I'm so grateful to that gentleman जिन्होंने ये program arrange किया था. और जैसे उन लोगों ने, there were more than 10,000 people logged in at that time. 10,000 people. And amazing, amazing. जो experience हुआ उसकी तो मैं खैर बयान ही नहीं कर सकती. So you have to look into your life. कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था पास्ट में, ऐसे 3 इंसिडेंट्स पे यू वाज फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी एंड आप थक ही नहीं रहे थे. आपको लग ही नहीं रहा था कि आपको थकावट है. आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी थी, आपकी कोई पेन नहीं हो रहा था. उसके बाद आप जब लेटे होंगे या दर्द हुए तब आपको पेन या टायर्डनेस लगा, बट एट दैट मोमेंट यू वर फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस. सो दिस इज पार्ट 1. सो जब हम बात करें 3 pronged, सो नंबर 1 इज दिस. स्टेप नंबर 1, look into your past. या आप ऐसे कौन से 3 इंसिडेंट्स थे. या ओके. सो अभी आपको कुछ दिखना शुरू हुआ. से यस और नो, राइट इट इन द चैट बॉक्स. क्या आपको 3 इंसिडेंट्स में से कुछ फ्लैश होना शुरू हुआ? Yes, ma'am. All 3. या सो राइट चैट बॉक्स में यस एंड नो लिख दो सब जने. किस किस को दिख गया? मूव योर फिंगर्स. Just write yes or no. If अगर कुछ दिखा है तो yes, नहीं दिखा तो no लिख दो. But just write something so that I know that you're getting it, what we are talking right now. Come on, write yes or no. I can't see anything. Have you written anything, any of you? मुझे नहीं लिख रहा कुछ भी. Yes, everybody is writing, I think. Okay, maybe because the book is visible, so I'm not able to see the chat. Most of them have written. Okay, thank you so much. Okay, let's look at step 2. Step number 2, health you are continuing to receive, present. हाँ, Think about. हमने पास्ट के गड्ढे भर लिए. पास्ट के लिए हमने ग्रेटिट्यूड दे दिया हेल्थ को लेकर. नाउ वी विल डू फॉर प्रेजेंट. दैट इज राइट नाउ. प्रेजेंट इज दिस मोमेंट. जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना, बी इन द प्रेजेंट. सो व्हाट इज दैट प्रेजेंट? प्रेजेंट इज दिस मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ. Not what Rahul was talking. That is past already. What I am talking to right now. This moment. This moment. This moment. This is present. This is present. This is present. अब जो मैंने इससे पहले चुटकी बजाई वो पास्ट में गया. This is present. So start looking at your life right now. हाँ जी, पढ़ें. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in the body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. Okay, तो अभी आपने क्या देखना है? इस वक्त, इस मोमेंट में आपकी बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? You are able to see the screen. You have your eyes which are able to see. If you are able to hear me, you have your ears which are working and you are able to hear my voice, or you can hear Rahul's voice, right? And if you are using your mobile, you are able to touch your mobile. So you have your hands,
You have your arms which are working, right? So start looking at 5 such things or such organs. अगर आप इस टाइम आप सांस ले पा रहे हो तो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो काम कर रहा है. अगर आप जिंदा हो तो आपका हार्ट इस टाइम पंप कर रहा है, आपका हार्ट इस टाइम बीट कर रहा है. या अगर आप ये सब चीजों को असिमिलेट कर पा रहे हो अपने दिमाग में, इन सब चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हो, तो आपका ब्रेन काम कर रहा है. सो यू स्टार्ट लुकिंग एट इट. क्या आपके इस टाइम पे, इस मोमेंट में कौन से ऐसे 5 चीजें हैं बॉडी की जो काम कर रही हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, राइट? ओके, लेट्स लुक एट स्टेप नंबर 3. Step number 3. Health you want to receive, future. ओके, अभी हमने किस एरिया पे काम करना है? अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी डिसीज है या एलिमेंट है जिससे हम परेशान हैं और हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए. हो सकता है आपका बीपी बहुत हाई रहता है, हो सकता है आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहता, हो सकता है आपके घुटनों में दर्द रहता है, हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हो सकता है आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है, हो सकता है आपके पैरों में दर्द है, हो सकता है आपको बैक एक है, हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर है, कुछ भी हो सकता है. अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी डिसईज है, मगर डिसईज का मतलब आपकी बॉडी जो है वो ईज में नहीं है, ईज में नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्ट दे रहा है, डिसईज है आपकी बॉडी में, तो आपने उस पे काम करना है कि उसको आपने कैसे हेल्थ को रिस्टोर करना है. तो हम सब चाहते हैं ना, वो वी ऑल वांट कि हमारे हेल्थ में जो भी इशू हो रहा है उसको हम किसी तरह से ठीक कर लें. इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की जगह भागते रहते हैं. सो अगर हमें वो पता चल जाए कि वो एक ऐसा कौन सा गुर है, ऐसा कौन सा एक मैजिक है, या ऐसा कौन सा एक चाबी है जिससे हम उसको खोल सकते हैं, अपनी हेल्थ के उस एरिया को इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो क्या है? या सो लेट्स रीड दैट. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion of receive back that ideal state. Okay, तो हम लोग गलती क्या करते हैं? हम कहते हैं, हे भगवान मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, हे भगवान मेरी शुगर ठीक हो जाए. हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग. यहाँ बोलते हैं, हे भगवान मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए. बट आइडियल स्टेट क्या है? हमें उसके ऊपर फोकस करना है. अगर आपका बीपी ठीक होगा तो हाउ विल यू फील? write in the chat box. अगर आपका आइडियल बॉडी होगी और आपका बीपी हाई रहता है, तो आपकी आइडियल स्टेट ऑफ बॉडी क्या होगी? somebody write in the chat box, क्या होगी आइडियल बॉडी? or unmute and see, because the book is being shared, I'm not able to see the chat. So if somebody can just unmute and say, अगर आपका vibrant and healthy, या अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा तो क्या होगा? What will be the ideal state? energetic. Okay. So आपने अपने आइडियल स्टेट के ऊपर फोकस करना है. आपने ये नहीं कहना कि मेरी ये चीज ठीक हो जाए. अगर वो ठीक हो जाएगी तो कैसा महसूस होगा? अगर आपकी वो चीज ठीक होगा, अगर आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आपके घुटनों का पेन ठीक हो जाएगा, तो कैसा महसूस करोगे? You will feel flexibility in your body. You will feel easy to climb the steps and walking for a long time, standing for a long time. So that is the ideal state. So you have to focus on that. Thank you for giving me flexibility in my joints, or thank you for giving me flexible knees or strong knees. Because अगर आपके knees में pain नहीं होगा तो आपके knees strong ही तो होंगे ना, flexible ही तो होंगे ना. तो आइडियल स्टेट क्या? आपको उस पर फोकस करना है. और अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो आपका अगर हाइपोथायराइड ठीक हो जाएगा तो क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म परफेक्ट हो जाएगा. सो यू कैन ऑलवेज से, थैंक यू फॉर गिविंग मी परफेक्ट मेटाबॉलिज्म.
और परफेक्ट डाइजेशन, बिकॉज मेटाबॉलिज्म क्या करता है, आपकी बॉडी को डाइजेशन को इंप्रूव करता है. सो यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द आइडियल स्टेट, और आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है, फोकस उस पे करना है, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी. अगर नहीं हो तो प्लीज नो लिख देना चैट बॉक्स में. वंस दी or have you any question you have, you can just write it in the chat box. Once this the sharing is complete, then we will look at the questions and the comments also, because abhi main share kar rahi hu to main dekh nahi pa rahi hu. हाँ जी, पढ़ें. Very often when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they'll research and disease gathering information about it possible, and possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings on that. Gratitude for the ideal state of any part of the body powerfully uses our thought and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Okay. तो अभी क्या होता है, जब भी किसी को तकलीफ होती है ना, तो सबको गाता रहता है. फोन आया, हाउ यू फीलिंग, नहीं यार आज तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत माइग्रेन हो रहा है, 3 दिन हो गए मेरा माइग्रेन ही नहीं जा रहा. सो यू आर टॉकिंग मोर अबाउट इट. आप अपने आप से तो कह ही रहे मुझे माइग्रेन है, हाय मेरा माइग्रेन, हाय मेरा माइग्रेन, हाय मेरा माइग्रेन. अपने आप को तो बार बार बोल ही रहे हो, एंड उसके बाद जिससे भी बात कर रहे हो आप उसको बता रहे हो. एंड देन एवरी टाइम कोई आपको कोई और डॉक्टर बताता है, आप उसके पास पहुंच जाते हो, डॉक्टर साहब मेरा ना तो माइग्रेन ही नहीं जाता. तो आप कर क्या रहे हो, यू आर गिविंग फोकस टू द प्रॉब्लम, नॉट टू द सोल्यूशन. और हमें ये पता नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं. हमारे हिसाब से तो हम अपना दुखड़ा रो रहे हैं, कि बताएंगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या तकलीफ है. जहां जरूरत है उसी को बताओ, सारी दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप उसको फोकस दोगे उतना वही आपकी चीज में जिंदगी में और आएगा. और इस चीज का एहसास हमें नहीं होता है. आई एम टेलिंग ईच वन ऑफ यू हु ऑल आर देयर इन दिस प्लेटफॉर्म, एंड इवन पीपल हु आर गोइंग टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, इस चीज के बारे में हमें एहसास नहीं होता कि जितनी बार हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, हम फोकस प्रॉब्लम पे डाल रहे हैं, और जितना हम जिस तरफ फोकस जाता है एनर्जी उधर ही जाती है. ये हमने मैजिक टेस्ट में भी देखा था ना, wherever focus goes, attention जाती है जहां पर भी, उधर ही एनर्जी फ्लो होती है. तो जहां पर भी हम प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट. तो आपको अपनी लाइफ में जहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं, वहां प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट इज द आइडियल एंड रिजल्ट ऑफ दैट. अगर ये ठीक हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर फोकस करना है. तो जब आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, तो आप मैग्नेटिकली उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी सारी उस तरफ फोकस हो गई है. सो वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. तो जिस तरफ फोकस जा रहा है एनर्जी आपकी वहीं जा रही है. तो जहां पर एनर्जी जाएगी थॉट एंड फीलिंग्स के साथ, वहीं पे आपको वही चीज वापस आपकी लाइफ में आएगी. सो आज से अपने तकलीफ के बारे में कम से कम बात करनी, ना ही करो तो अच्छा है. जहां जरूरत है, अगर डॉक्टर से बात करनी है तो करो, अदरवाइज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है. अगर आपने बोला कि मेरे को माइग्रेन हो रहा है, आपने जिसको बोला उसकी किसी से बात हुई, उसने बोला पता है तुझे आज ने मेरी उससे बात हुई थी, उस बेचारे को तो 3 दिन हो गए माइग्रेन हो रहा है. अच्छा, उसको माइग्रेन हो रहा है. जितनी बार माइग्रेन बोल रहे हैं उतनी बार वो माइग्रेन अट्रैक्ट हो रहा है उसकी लाइफ में, और जो बोल रहा है उसकी लाइफ में भी अट्रैक्ट हो रहा है. उसको पता ही नहीं कि वो नेगेटिव फीलिंग को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में. तो अगर कोई अपने दुख की बात करता है, तो आप उसकी दुख की बात को रिपीट नहीं करें किसी के पास. एक उस बंदे का बुरा हो रहा है, बिकॉज उसके लिए वो मैग्नीफाई हो रही है वो चीज, प्लस कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट आपको भी इम्पैक्ट कर रहा है, because what goes around comes around, na? Yeah, so please take care of that. हाँ जी, पढ़ें.
Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. ओके तो विजन बोर्ड में हम क्या करते हैं? विजन बोर्ड में हम वही करते हैं जो हमें चाहिए होता है, उसकी पिक्चर लगाते हैं और उसको हम बार-बार विजुलाइज करते हैं और उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। तो सिमिलरली आपको अपनी बॉडी का बॉडी में जो भी आइडियल स्टेट चाहिए, आपने उसको विजुलाइज करना है 1 मिनट तक। यहाँ पर जितनी भी आगे भी एक्सरसाइज विजुलाइजेशंस की हैं, वहाँ पे सब जगह उन्होंने 1 मिनट बोला बिकॉज़ दैट इज़ द मिनिमम यू शुड स्पेंड विजुलाइज करने में। तो विजुलाइज करना है आपको अपनी आइडियल हेल्थ। क्या आप अगर आपका बॉडी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही होगी तो कैसी लग रही होगी? अगर आपका आइडियल वेट होगा तो आपकी फिगर कैसी होगी? आपका एनर्जी लेवल कैसा होगा? तो आपने उसको विजुलाइज करते हुए थैंक यू बोलना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो जैसे अगर आपने विजन बोर्ड पे अपनी पिक्चर लगाई है जिसमें आपको जैसी बॉडी चाहिए, जैसे राहुल ने भी शेयर किया था, इसने वो आई थिंक 6 पैक्स या कुछ ऐसे एक फोटो लगा रखी है अपने विजन बोर्ड। Yes ma'am, yes ma'am. that is what his ideal body he wants, that is his dream body. So जितना वो इस चीज के ऊपर फोकस करके ग्रेटिट्यूड देगा as if he already has it, उतनी ही जल्दी उसको वैसी बॉडी मिलेगी। and it is you will be surprised कैसे अपने आप की बॉडी अपने आप वो शेप लेना शुरू हो जाती है, कैसे आपको ऐसी चीजें आसपास दिखनी शुरू हो जाती हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है या लोग ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपको उस एंड रिजल्ट तक पहुंचने में हेल्प करना शुरू कर देते हैं। You know, you're going to a gym, you will find somebody who is a personal coach and fitness coach, वो आपको गाइड करना शुरू कर देगा कि ये वाली एक्सरसाइज तो ऐसे करना शुरू करेगा तो इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। और मे बी वहीं पे कोई डाइट वाला भी बता देगा कि नहीं आपको ना ये खाएगा ना तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू पुट इन मोर एफर्ट। तो अपने आप चीजें और अपने आप लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते जाएंगे जो आपको उस डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करेंगे। या सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, 1 मिनट के लिए आपको उस आइडियल स्टेट को विजुलाइज करना है। हाँ जी, एब्सोल्युटली ट्रू मैम, क्योंकि जिम में मुझे आपने जैसा बोला ना एग्जैक्टली वैसा हुआ। जिम ट्रेनर मुझे मिला, एक नया वाला आया है एंड देन ये जो नया ट्रेनर है उसने मेरे को बता दिया कि हम लोग जो एब्स मारते हैं वो गलत मार रहे थे, तो उसने वो मेरे को बता दिया। एंड लकीली वहाँ पे एक कोलंबिया एशिया की एक डाइटिशियन आ गई और वो भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होगी, तो वो उसने भी बताना चालू किया हमें। तो एग्जैक्ट आपने जो सेम वर्ड जो बोला ना, दोनों सेंटेंस बोला ना, सेम टू सेम होने चालू हो गए, सेम टू सेम डिट्टो। Isn't that magical? It's absolutely magical, absolutely magical. Yeah, please continue. Yes. If you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sits out all the waste products from your body. One second, आज का चैप्टर थोड़ा लंबा है तो we will try and finish it by 8 o'clock. And so because हमने पहले इसीलिए टाइम 8 o'clock तक दिया हुआ है क्योंकि हमें कुछ चैप्टर्स जो है वो थोड़े से लंबे हैं, उसमें टाइम लग जाता है। So thank you so much for bearing and being in the session. हाँ जी। If you want magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. Okay, तो अगर आपको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को हेल्थ को रिस्टोर करना है तो आपने किस तरह से रिस्टोर करना है? अगर आपको अपनी किडनी के बारे में रिस्टोर करना है तो यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू किडनी। और हमने ये सीखा है जब भी हम ग्रेटिट्यूड देते हैं उसके आगे हम लिखते हैं वाई, है ना। जब हम वाई लिखते हैं बिकॉज करके, जब हम अपना काउंट द ब्लेसिंग्स में बिकॉज करके लिखते हैं ना कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं, तो जब हम लिखते हैं ना थैंक यू फॉर आवर परफेक्ट वर्किंग ऑफ आवर किडनी बिकॉज इट इज फिल्टरिंग द जितना भी हमारे अंदर वेस्ट है उसको वो एक्सक्रीट कर रहा है, उसको सिफ्ट करके, उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो जब आप ऐसे बोलते हो तो आपको फीलिंग आती है कि हाँ यार कितना काम कर रही है हमारी किडनी, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग, एंड इट इज ऑल अ गेम ऑफ फीलिंग्स।
because feeling is the fuel. जब आप फील करके उसको ग्रेटिट्यूड दोगे तो वो आपकी बॉडी के उस पार्ट में हेल्थ को रिस्टोर करेगा. सिमिलरली अगर आपका मान लो आपका हीमोग्लोबिन लो है या आपके ब्लड में कुछ यू वांट योर ब्लड की क्वालिटी या ब्लड का आपका जो भी कॉम्पोजिशन है या जो भी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यू कैन से थैंक यू टू योर ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड, जो भी है जिसके लिए भी आपको करना है, तो आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं कि वो जो है वो ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा रहा है और आपकी बॉडी को किस तरह से वो एनर्जी दे रहा है, या तो आप उसको भी रिस्टोर कर सकते हो. सिमिलरली जो भी आपकी बॉडी पार्ट है जिसको भी आप रिस्टोर करना चाहते हो उसका व्हाई ढूंढो कि क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, एंड उसको विजुअलाइज करते हुए आइडियल स्टेट को एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटिट्यूड. हाँ जी. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks to excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supply and agile body. Supple. Then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at the ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. So आपको जो भी अपने पार्ट के बारे में करना है उसकी आइडियल स्टेट को सोचते हुए, और आपको सोचना है आप किस चीज क्यों उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उस आइडियल स्टेट को सोचते हुए और व्हाई उसका क्या फंक्शन है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हुए आपको ग्रेटिट्यूड देना है. हाँ जी. Yeah, please continue. Yeah. Whatever is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. Okay. तो अगर आपने पहले कहीं सुना हो या नहीं सुना हो तो अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बोला जाता है कि हमारी बॉडी में एवरी मोमेंट बहुत सारे सेल नए जनरेट होते हैं, पहले सेल मर जाते हैं और नए सेल जनरेट होते जाते हैं. इसी तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी रिन्यू होती रहती है. आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे बॉडी के एक पार्ट, स्किन, सेल्स, एक चीज हमारी बॉडी की जो है वो अपने आप बदलती रहती है और वो रिन्यू होती रहती है, बिकॉज नेचर हैज क्रिएटेड इट लाइक दैट कि वो अपने आप ही उसको रिन्यू करती रहती है, अपने आप ही हमारी हेल्थ को वो रिस्टोर करती रहती है अगर हम उसको नेचर के हिसाब से चले. तो अगर हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं तभी हमारे बॉडी में डिसीजेज आती हैं. अगर हमें 8 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे सोना चाहिए और हम 4 घंटे सोते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी पे होता है, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर. तो जहां भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, और अगर नेचर ने ये बनाया हुआ है कि सनराइज के साथ खाना है, और बिकॉज मॉर्निंग में हमें ज्यादा खाने की जरूरत है, और जैसे जैसे सन उगता है हमारी भूख बढ़ती है और हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, और जैसे जैसे 3 बजे के बाद सनडाउन शुरू होता है हमारी बॉडी भी रिलैक्स मोड में जाना शुरू हो जाती है और वो उतनी एक्टिवली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. इसीलिए हमारा फूड का इंटेक कम होना चाहिए और लाइटर होना चाहिए, विच इज इजी टू डाइजेस्ट, और सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए. दैट इज हाउ द नेचर हैज बिल्ट इट. पर हम लोग उसकी टोटली अगेंस्ट जाते हैं. रात को 11 बजे खाते हैं, 1 बजे सोते हैं और 4-5 घंटे सोते हैं या 4 घंटे सोते हैं. तो वी आर डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट नेचर. But nature forces are there to help us to restore our health, have a disease-free body. तो अगर हम नेचर के साथ चलना शुरू हो जाएं और जिस पार्ट हमारा एरिया हेल्थ का नहीं काम कर रहा उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर जाएं, तो हमें ये सब इंफॉर्मेशन अपने आप हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी. ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे तो डायरेक्शन पे ले जाना शुरू कर देंगे, provided you really want to do it. Yeah, please continue. You can follow the magic and miracles in health practice every day.
if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whatever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you, next page ma'am, no, you want, and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health other than taking good care of your physically is to continue to be grateful for your health. Okay, तो एक चीज और जो मैजिक प्रैक्टिस नंबर, हाँ अभी रुको, जो एक चीज और मेरे दिमाग में अभी आई है कि एक चीज हम जो और करते हैं, हम जब भी कोई तकलीफ होती है ना, हम सबसे पहले गूगल में जाके सर्च मारते हैं कि इसका वर्स क्या हो सकता है। अभी जैसे वैक्सीन आई है तो लोगों ने पहले पूरी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन जो इंडिया में अवेलेबल है, पूरी रिसर्च कर डाली है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, अच्छा इसका वर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, हम सबसे पहले ये सब चीजें ढूंढना शुरू करते हैं। और जितना ही हम इन चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें वो नेगेटिव थॉट हमारी बॉडी में और हमारे दिमाग में लाना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। कोई भी दवाई खाने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई भी तकलीफ होती है, अगर किसी को हल्का सा जुकाम भी हुआ है तो सबसे पहले देखता है, अच्छा मुझे कोरोना तो नहीं होगा, अगर कोरोना हो गया तो मुझे क्या क्या हो सकता है, मौसम चेंज हो रहा है, क्या हो गया अगर जुकाम हो गया। बी कॉशियस, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू गोइंग टू द लेंथ कि आप पूरा उसका रिसर्च कर डाला कि अगर मुझे ये होगा तो उसका एंड रिजल्ट और क्या बुरा हो सकता है, और क्या बुरा हो सकता है, अच्छा इसका फाइनली क्या हो सकता है। जिनको कोरोना हुआ था उसका सबसे गंदा रिजल्ट क्या हुआ, या तो वो मर गए, अगर नहीं मरे तो उनका सबके सबसे बुरा क्या असर हुआ था। एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। आर यू गेटिंग व्हाट यू आर डूइंग? You're sabotaging yourself. You're sabotaging your health. Please don't do that. डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो कहता है उसको सुनो, अपनी रिसर्च मत करो। और दूसरी बात, कभी भी अपनी दवाइयां बाहर निकाल के मत रखो। जब आपकी सारी दवाइयां आपके सामने रहती है तो वो आपको सिर्फ एक ही चीज याद दिलाती है, you're not well. आपको अपनी किसी भी ड्रॉअर में रखनी है, ड्रॉअर में रखो। जो आजकल वो डिब्बियां आती हैं डोसेज के हिसाब से बना के रखते हो, वो रखो, उसको भी अंदर रखो, बाहर रखने की जरूरत नहीं है। नो सच रिमाइंडर्स दैट यू आर नॉट वेल और यू आर हैविंग अ डिसीज, बिकॉज दैट विल हैम्पर योर दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। बिकॉज वो आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंडर देगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये दवाइयां खानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दवाइयों को कभी भी ऊपर सजा के मत रखो। कीप देम इनसाइड, अंडर कवर, ड्रॉअर में रखो या कैबिनेट्स में रखो, जब खानी है तभी निकालो। या प्लीज टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स आल्सो व्हाइल वर्किंग ऑन दिस, दिस विल रियली हेल्प यू। हाँ जी, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 16। Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Number 2. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one, give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, Rahul, for reading it for all of us. Okay, so let's look at the practice. So number 1, you know what to do. So आज की practice में आपको, as it said, it's a 3-pronged approach which you have to apply. तो सबसे पहले आपको 3 ऐसे incidents याद करने हैं अपने past के, जब आप you felt that you really felt healthy, आप में बहुत energy थी, you're very happy,
and you were feeling on top of the world. ठीक है, ऐसे 3 इंसिडेंट्स याद करने, बचपन से लेकर जवानी तक, एडल्टहुड तक, जब भी ऐसे कोई से भी 3 इंसिडेंट्स याद करने हैं. And people who have been doing this book again with me this time, please don't choose the same incidents. There are plenty of such incidents. Look for the new ones. और आप जब देखना शुरू करोगे, ढूंढना शुरू करोगे, they will start popping up. Same use नहीं करना है. Okay. So number 2, आपने इस मोमेंट पे जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे, उस टाइम पे आपके 5 बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स एंड ऑर्गन्स हैं जो परफेक्टली काम कर रहे हैं, आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है, राइट. एंड नंबर 3, आपके बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसी कौन सी हेल्थ इशू है जिसको आप सच्ची में, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, यू नीड टू वर्क ऑन इट. तो आपने उसकी आइडियल स्टेट को सोचना है और उस आइडियल स्टेट को सोचते हुए 1 मिनट विजुअलाइज करना है कि वो आइडियल स्टेट जब होगी तो आपको कैसा, आप कैसे होगे, और उसको महसूस करते हुए आपको ग्रेटिट्यूड देना है, राइट. So this is what you're supposed to do, and of course the last practice is your magic rock practice, which we all are doing every day. I hope you are doing it. Yeah. So this is about today's practice, and thank you so much everybody for participating and making this so enriching for everybody. And तो आज आपको एक तो ये प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपने अपना बडी ढूंढना है, उससे कनेक्ट करना है फोन पे, उसके बारे में पूछना है, अपने बारे में बताना है. सो जेन्युइनली गेट कनेक्टेड विद पीपल. हम लोग पता है जब लोगों से मिलते हैं, हाय कैसे हैं आप, अच्छा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, दैट्स इट. गेट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल. उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए. बी इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ एंड वाइस वर्सा. जो आपका बडी है उसको आपकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए. तो यू नेवर नो, जो यहाँ बडीज आज बनेंगे, शायद आप पूरी जिंदगी के लिए बडीज बन जाओ, एंड वो आपका ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाए कि आपको कभी भी कुछ सुख है, दुख है, तो फर्स्ट पर्सन यू थिंक ऑफ इज उसको फोन करना है. या सो ऐसा बडी बन जाए आपका. यू नेवर नो, लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं तो वो गॉड सेंट होती हैं. किसने दी है, किस लिए दी है, उसके पीछे पर्पस क्या, वो ऊपर वाला ही जानता है. बट ये अगर मेरे मुंह से आज निकला है, ये आज क्रिएट हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो यूनिवर्स guiding me to do this and is guiding you to choose your buddy today. So choose your buddy, share the name of your buddy in the WhatsApp group, and today you have to get in touch. Sunday वैसे भी है, टाइम होगा सबके पास. Call that person, सबके numbers WhatsApp group में है, call them up, speak to them, get connected, and उनके ड्रीम्स पूछो, अपने ड्रीम्स शेयर करो, ताकि वो आपको सपोर्ट करें अपने ड्रीम्स फुलफिल करने में और आप उनको सपोर्ट करें. जहां पे भी अटकते हैं उनसे शेयर करो कि मेरे ने यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे ये चीज नहीं बढ़ने दे रही है, या मैं ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये चीज रोक देती है, या मेरा ये थॉट आ जाता है. तो आप उनसे ये सब शेयर करेंगे. डोंट लेट लुकिंग गुड कम इन बिटवीन. बडीज में कुछ लुकिंग गुड नहीं होता है. आपको मालूम है लुकिंग गुड क्या होता है? राइट इन चैट बॉक्स yes और no, और मे बी अगर आपको पता है या नहीं पता है, या कुछ पता है आपको लुकिंग गुड क्या होता है. जिन्होंने लैंडमार्क किया उनको सबको पता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द लैंडमार्क. ओके, रंजन जी को नहीं पता. ओके, दीपक को नहीं पता. ओके, हु एल्स? आई वांट एवरीबॉडी टू राइट yes or no. ओके, Moita doesn't know. Okay. Suma, okay, no. So most of you don't know. Okay. So this is something which first thing we learned in Landmark. तो हमने क्या सीखा था वहां पे कि हम पूरी जिंदगी ना या तो लोगों के सामने अच्छे बने रहना चाहते हैं इसलिए वो काम कर रहे होते हैं, या बुरे ना लगे इसलिए वो काम कर रहे होते हैं. हमारा मन नहीं चाह रहा होता, हमको उसमें खुशी नहीं मिल रही होती, और हम अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं वो काम करने से, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोले, हम लोगों के सामने अच्छे लगे, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी अच्छा लगना चाहते हैं, लोगों को तो लगना ही चाहते हैं. सम थिंग्स वी डू ओनली टू लुक गुड टू आवर ओन सेल्फ.
कुछ लोग दान इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को अच्छे लगे, देखा मैंने दान किया, गुड या यू डिड दिस, तो अच्छा काम किया आज तूने। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जिंदगी में हम करना चाहते थे, चाहते हैं और चाहेंगे, पर ये लुकिंग गुड हमारे आड़े आ जाता है और हमें करने नहीं देता है। तो आपने अपने बॉडी के साथ वो लुकिंग गुड को नहीं आने देना है। डोंट लेट एनीथिंग कम बिटवीन यू एंड योर बॉडी कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे को जज करेगा, बिकॉज बॉडी नेवर जजेस यू। बॉडीज आर ऑलवेज देयर टू मेक यू विन। अगर वो आपको कुछ बोलेगा, आपको कुछ गलत लग रहा होगा तो आपको टोकेगा, तो वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि आप जीतो। वो इसलिए नहीं बोलेगा कि वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। नो, उसका इंटेंशन एक ही होगा कि आप जीतो। तो जब आप बड़ी बनोगे तो आपने भी ये बैकग्राउंड में रखना है कि आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इज टू मेक योर बॉडी विन। यू शुड नॉट बी ऑन द पिक्चर कि मेरे को कितना ज्ञान है, मैं कितना एडवाइस कर सकता हूँ। नो, द ओनली इंटेंशन इज टू मेक अ डिफरेंस इन द अदर पर्सन्स लाइफ, जो आपका बॉडी है। तो इस इंटेंशन के साथ आपने उस बॉडी से इंटरैक्ट करना है। तो जब आप इस इंटेंशन से इंटरैक्ट करते हो तो जजमेंट नहीं आती है। सो देयर इज नो जजिंग ऑफ ईच अदर। तो अगला बंदा भी खुल के बात करता है। तो वो एक ग्राउंड आपको क्रिएट करके वो माइंडसेट के साथ आपने एक दूसरे से बात करनी है। Am I right? Am I clear to everybody? Say yes or no. Yes, ma'am. Absolutely true. Okay. Yes. Others, am I clear? Yes. Okay. Yes. Great. Yeah. So this is what you're supposed to do over and above your assignment about health. तो आपको तीन steps करने हैं, तीन चीजें आपको अपनी पास्ट के बारे में। Yeah, may I request others to be on mute, please? Ranjan sir. Yeah. So आपको आज का प्रैक्टिस समझ आ गया। आपको तीन चीजें करनी है। पास्ट की तीन चीजों के बारे में सोचना है जब आप फुल ऑफ हेल्थ एंड एनर्जी थे। अभी इस मोमेंट में 5 ऐसी चीजें देखनी है अपनी बॉडी की जो परफेक्टली काम कर रही हैं, और एक ऐसा एरिया अपने हेल्थ का लेना है जिसमें आप रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म दैट एरिया, जिसमें आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए। राइट? तो आपने इन तीनों पे काम करना है आज, एंड अपना बॉडी बनाना है, बॉडी के साथ कनेक्ट करना है और उसके ड्रीम्स शेयर करने हैं और अपने ड्रीम शेयर करने हैं। करेक्ट? Everybody is clear about it? Okay, great. So let's do our gratitude practice. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. क्योंकि आज हेल्थ का चैप्टर है तो आप अपने हेल्थ के किसी बॉडी के किसी भी पार्ट को थैंक यू बोल सकते हैं। Okay, so thank you everybody, and enjoy your Sunday. Enjoy connecting up with your buddy, and in case anybody has any concern, any कहीं पे आपको कोई support चाहिए, please reach out to me or Puran. And in case you need any support related to health, Darshan ji is always there, and he's always there to help you with any of your health issues. Absolutely. And he will guide you. He will guide you how to restore your health, and because he's a health coach and he's very generous. He's always there to help you, and whatever knowledge he has, he really want to share and make a difference in your life, so that you इसीलिए तो मैंने बड़ी बनाया है. And you live an amazing life. Yeah. आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शन जी? Thank you. आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल. It's very important. You see, everybody is here to enjoy good health,
Everybody is here to enjoy the beautiful life. Everybody is here to enjoy. So enjoy. Now today it's the entire thing is looking like a family. Look at everybody's face, everybody's smiling, everybody's bright, everybody's paying attention. Wow, it's a beautiful family. I'm so grateful. What an initiative. Thank you. Thank you so much, Darshan ji. And I would request from tomorrow onwards, आपने अगर थोड़ा कंघी वंगी करनी होती है, मुंह धोना होता है या किसी चेयर पे बैठना होता है, बेड पे ना बैठ के चेयर पे बैठना होता है, तो वो सब कर लेना, because I really want everybody to switch on their videos from tomorrow. या मतलब मैं ही क्यों तैयार होके बैठूं यार, आप लोग भी तैयार होके बैठा करो सुबह. If I make that effort, I want you also to make that. Definitely. Yeah. Okay. Love you all. Have a wonderful day. Enjoy yourself. Thank you. Bye bye. Love you. Thank you. Bye. Great.